नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। एक्चुअली देखा जाए तो इस वक्त मैं नई दिल्ली में हूं और मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं सिडनी से। जी हाँ, स्टीव वॉक क्रिकेट इतिहास के दिग्गज कप्तानों में से एक, और उनके साथ अभिषेक बच्चन। अगर आप देखा जाए, अभिषेक बच्चन की मशहूरी एक एक्टर के तौर पर हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरह से खेल की दुनिया में, खासतौर पर अगर देखा जाए क्रिकेट के बाहर भी, जिस तरह से वो एक एंटरप्रेन्योर, को फाउंडर के तौर पे जुड़े हुए, जिस तरह की उन्होंने कामयाबी हासिल की है इस दूसरी इनिंग्स में, दूसरी तरह के पिच, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और यहां पर आज हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं एज ए को फाउंडर यूरोपियन T20 लीग। जी हाँ, अगले इस साल अगस्त के महीने में ये T20 लीग शुरू होने वाली है। इस लीग के साथ बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं। क्या पूरी योजना है, हम सीधे जानते हैं इन दोनों मेहमानों से। सो थैंक यू सो मच जेंटलमैन for spending your valuable minutes with us. I will start with Steve first. Steve, ever since your retirement, you have stepped away from the usual, post-retirement role like commentary or coaching, and now suddenly you are in the frame with this ELT20 league. So, what's the reason? What is so special about this league that you have come out of sort of retirement from active cricket? Before he answers that, Vimalji, I want to know what is so special about Flintoff and Ponting that you have their books behind your head and not his? No, Steve's book is also there. You can see that. So, and that, in fact, there has been. I have been such a great admirer when Steve retired. So Akash Chopra got one book, autographed for me, especially in 2004. So old admirer of Steve. Yeah, I guess I've been pretty busy doing other things. My philanthropy is a big part of my life with my charity in Australia and overseas. I've been involved in entrepreneurial projects, done mentoring for the Australian Olympic team, went to Beijing and London. We involved the Ashes team a few years ago, mentored the soccer team, and some other various projects, and have 3 kids. So life's been busy. I figure there's enough good commentators out there that don't need me on the circuit. But this is a unique opportunity, and I've been waiting for something in cricket to really, I guess, stimulate me and challenge me, and something that really is important that can make a difference. And when I heard about the European T20 League, that really interested me straight away because it was something different. I've always had that affinity with that underdog spirit and never say die attitude and taking a challenge on. And I figure that Europe is the sort of last frontier of cricket. It's an untapped, under-resourced market. There's 30-odd countries in Europe play cricket. 3 of those countries at the T20 World Cup coming up. The Olympics is on the horizon, so that provides an opportunity for countries in Europe. And to take the best players to Europe and mix them with the continental players, I think is a huge opportunity. So I wanted to be part of that. The Amsterdam Flames is exciting. It's a learning curve for me to be an owner rather than a player. But we've signed up some amazing cricketers. We've got Mitch Marsh as our captain, who's a great leader, a really good fella, and we straight away said yes to the opportunity to captain a side and to develop a team. We've signed up Steve Smith, one of the legends of the game. And we also have the Dutch captain in Scott Edwards. So we've got some great leaders already signed up. So for me, it's an exciting venture. It's something that I'm passionate about and I want to be involved in. ओके, नाउ आई विल गो बैक टू अभिषेक। अभिषेक, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन किताबों की चर्चा की तो मैं थोड़ा सा पर्सनल मेंशन करना चाहूंगा। आपके पिताजी अमिताभ बच्चन जी एक बार हमारे स्टूडियो में आए थे और सचिन पे हम किताब लिख रहे थे, तो उन्होंने एक स्पेशल चैप्टर लिखा था, बुढ़ा होगा तेरा बाप के कॉन्टेस्ट में। वो क्रिकेट पर काफी बात की थी, तो हमें एहसास है कि बच्चन फैमिली में और क्रिकेट का एक पुराना कनेक्शन रहा है। अमित जी की पुरानी फिल्मों में भी हमने क्रिकेट कमेंट्री और उनका क्रिकेट से प्यार देखा है। आपकी एक खासियत रही है, आपने पिछले कुछ सालों में नॉन क्रिकेट लीग को सपोर्ट किया, वहां पर आप ऑनर बने, चाहे प्रो कबड्डी की बात करें, टेनिस लीग की बात करें, लेकिन अभी रिसेंटली आप फिर इस टेनिस बॉल क्रिकेट लीग में। बट ये पहली इंटरनेशनल क्रिकेट लीग है, ये आइडिया कहां से आया और सडनली अब आप इसमें जा रहे हैं? इसके बारे में एज ए को फाउंडर क्या विजन है आपका? जी देखिए, शुरुआत से मैं चाहता था कि हम लोग क्रिकेट के साथ कुछ करें, ये चाह थी मेरी। लेकिन मेरा मानना है कि बीसीसीआई जो है, इंडिया में उनका काम इतना अच्छा रहता है कि उन्होंने क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाई, उन्होंने उनका जो इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है, वो इतना मजबूत है कि आई डिडंट नो कि मैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट, योगदान कर पाऊं।
हम्म। जब यूरोपियन T20 लीग की जो बात शुरू हुई तो तब मुझे लगा कि क्रिकेट को लेके यहाँ एक ऐसे जगह पे हम लोग ये लीग करने जा रहे थे जहां मैं कुछ योगदान कर पाऊं। तो इस वजह से हमने ये निर्णय लिया कि हम यूरोपियन T20 लीग में इन्वेस्ट करेंगे और बढ़ाएंगे। मैंने हमेशा कबड्डी हो या फुटबॉल या इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग हो, ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने की जो डिसीजन है मैंने लिया है क्योंकि मुझे लगा कि मैं कुछ कर पाता हूँ उन मार्केट्स में। यूरोप में मुझे लगा अभी हमारे पास एक नया मार्केट है जहां हम क्रिकेट को लेके कुछ अच्छा काम कर पाए। तो इस वजह से यूरोपियन T20 लीग मैंने चुना टू मेक माय फॉरे इनटू मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल क्रिकेट। I believe Glenn Maxwell is also with us online, and yes, old friend Dheeraj Malhotra as well. Congratulations, Dheeraj. So I know you have a great man because having worked with Dheeraj in TWI and the way he has charted his own path from MLC to other leagues in cricket. Dheeraj, I've worked with him on Kabaddi and ISL as well. सो धीरज, आप भी चूंकि आप हैं हिंदी में, तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप एक साथ एक अलग अलग दिग्गजों को लेकर आ रहे हैं। आईपीएल में आप रहे हैं, आपकी इनिंग आईपीएल में रही है, अमेरिका में रही है। यूरोप कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन वही इंडियन मार्की प्लेयर का रहता है। सो डू यू सी पोस्ट 2027 जब रोहित विराट जब इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ेंगे, या वैसे खिलाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट कुछ आपने सोचा है, जैसे अश्विन भी कर रहे हैं कि उनको बीबीएल में खेलना था, या फिर वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पाए? दरखास्त आपके साथ करने वाले थे विमल जी कि आप जरा चिक्कू और रोहित को बोलिएगा कि जब वो रिटायर कर जाए वो आके ईटीपीएल में खेले सबसे पहले। हम जानते हैं कि आप जो कुछ भी बोलते हैं वो बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, तो जरा उनको बोल दीजिएगा। चलिए, ये बात आपने कही तो विराट एंड रोहित टू प्ले फॉर अस। Definitely, I will definitely, whenever I'm meeting them personally, I will definitely ask them. At least अश्विन को तो, अश्विन के साथ हमारी शो भी होती है ऐश की बात, और अश्विन is very innovative, so maybe we will discuss about that. But yeah, I'm aware that we are running short of time. So one final question to both Steve and as well as Abhishek. Steve, eventually we see all these leagues, whether it's a SAT20 or CPL, eventually the IPL owners involvement, give the tournament a different. Is there some idea that eventually in the coming years, the product will be something like that, then IPL owners will be interested in this product? I'm not sure. I mean, our franchise, the Amsterdam Flames, we're trying to create a really incredible franchise with a good culture, good people, provide great entertainment, connect with our fans, our fan base, bring new people to the game, and that attracts the IPL owners in 5-10 years' time. That's fantastic. But right now, our focus is on creating a team. For me, it's a new business venture, so I'm learning as I go along. It's one step at a time. Looking forward to the initial competition, August 26th this year, 6 franchises in the inaugural season. That's exciting for me. I can see people from all around the world, spending a week or two in the Netherlands or in Ireland, watching a bit of cricket, maybe playing some golf, having a holiday, taking their family. So I want fans from all around the world to come and watch this franchise. अभिषेक, जो आपकी क्रेडिबिलिटी है एज एक्टर यहाँ पर, जो आपकी, और जिस तरह से आप गए हैं, इस लीग को एक अलग तरह की क्रेडिबिलिटी मिलती है कि भाई आप हैं तो कुछ सीरियसनेस है, स्पेशली दिस स्टीव वॉग हो, ग्लेन मैक्सवेल, इस तरह के लोग। आगे के प्लान्स क्या हैं? क्योंकि अब तक हमने देखा कि 3 ऑनर्स के बारे में है, एक्सपेंशन का प्लान क्या, कुछ ब्रीफ में अगर आप बता सकें। जी, फिलहाल तो पहले 3 साल तक तो हमारी जो 6 टीम्स हैं वो खेलेंगे। हम यही चाहेंगे कि 3 साल के बाद हम एक्सपैंड कर पाए टू मेनलैंड यूरोप ऑल्सो, और चाहेंगे कि और भी देश जो हैं, यूरोपियन देश जो हैं, वो खेल पाए। That's the plan, that we'd like to expand. We're concentrating on the 6 franchises right now. We're very excited. And जैसे कि स्टीव जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि 26 अगस्त को ये टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, और बस आशा यही करते हैं कि लोगों को पसंद आए और हमें ये मौका दे कि यूरोपियन T20 लीग को और भी बढ़ाएं। अमित जी दिखेंगे इस टूर्नामेंट में? वो भी क्रिकेट के बड़े शौकीन है। एक आखिरी सवाल। जी देखिए, मुझे पता नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि वो जब भी आके मैच देखते हैं तो जो टीम वो सपोर्ट करे वो हार जाते हैं।
तो मैं तो पूछूंगा जरूर डैड मॉम ऐश्वर्या से कि वो आए सपोर्ट करें. I'm very confident that they'll come. Okay, thank you so much, both Steve Thank Ogg and you. Abhishek Bachchan, as well as Glenn Maxwell. Hopefully, we are meeting soon, maybe during this tournament. And wish you all the best. And उम्मीद Not करते हैं. maybe, but definitely. Okay, thank you so much. Definitely, we are going to. And wish you all the best. And thank you so much for your time. Thank you. Thank you very much. Cheers. Thank you. Thank you. See mate. Thank you. Cheers. See you, Tugger. mate. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं जितने हमारे दर्शक यहाँ पर हैं जिन्होंने इस इंटरव्यू को देखा, आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा. अभिषेक बच्चन ने जिस तरह से अपनी राय रखी है T20 लीग के बारे में, एक नया वेंचर वो शुरू कर रहे हैं, आप लोगों की भी बेस्ट विशेष चाहिए. स्टीव वॉग एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया में सक्रिय हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में बहुत सारे बड़े नाम भी क्रिकेट की दुनिया के, एंटरटेनमेंट की दुनिया के, कॉर्पोरेट की दुनिया के जुड़ेंगे. और आपको अपनी राय देनी है कि क्या वाकई में ये लीग IPL के बाद दूसरी सबसे बड़ी लीग बन सकती है या नहीं. फिलहाल हमारे साथ इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया.